Good morning, dear students. We are studying national income and related concepts. Till yesterday, I taught some of the numericals regarding the conversion of different aggregates, and I got some students getting problem in calculating depreciation or NIT or NFIA. So today I'll continue with the same numericals, how to calculate depreciation and how to calculate NIT. So I will first start with the same numericals and then I'll continue with the topic. So let's start with the numericals. So here your first question, calculate the value of depreciation. Now you have to calculate depreciation. Depreciation is not given to you, but here two aggregates are given to you. One is GDP at MP and NNP at FC. You can see here first point is GDP at MP, which is given 1100. And the other one is national income, that means NNP at FC 850. When we are having two aggregates here, the difference between two aggregates can be depreciation or NIT or NFI. बस यही तीन चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करके हम लोग कोई भी एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं. सो हियर वी आर हैविंग टू GDP at MP and the other one is NNP at FC. तो अगर इसको हमें कन्वर्ट करना होता है, व्हाट वी डू इज इफ वी वांट टू कन्वर्ट ग्रॉस इनटू नेट, वी यूज डेप्रिसिएशन, राइट. डोमेस्टिक इनटू नेशनल, वी यूज NFIA, एंड MP टू FC, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, वी यूज NIT माइनस NIT. सो नाउ depreciation has been asked. That means depreciation is not given to us. That means the difference between gross and net has been asked to us. But what about the other aggregates, national and factor cost, domestic and market price? So if we convert these two, either I convert national to domestic or domestic to national. So first we will see this. Look at here. अब देखो ये है GDP at MP. It is 1100, right? And to calculate NNP at FC. अब देखो depreciation we are not having, but we can convert domestic into national. How we'll convert domestic into national? We'll add NFI, right? What is net factor income from abroad? 100. And to convert market price into factor cost, we minus NIT. What is it? 150. जो भी कैलकुलेशन आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा NNP at FC. यही तो है. तो अब ये देखो कि जब हम लोग अब ये देखो, अब NNP at FC नहीं होगा, वो होगा GNP at FC, because here we are not having depreciation with us. ठीक है, तो जब हमने GNP at FC निकाल लिया और NNP at FC is given to us, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? डेप्रिसिएशन. तो ये तरीका है डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे. आप इसको देखते जाओ. GDP at MP, add NFIA लेस NIT. NFIA ऐड किया, क्या होगा? NFIA ऐड करने से जो हमारा डोमेस्टिक है वो नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो दैट मीन्स ये हमारा इसे ऐड करने के बाद क्या बन जाएगा? GNP at MP. ओके, नाउ व्हेन वी सब्ट्रैक्ट NIT हमारा क्या बन जाएगा? GNP at FC, राइट. तो GNP at FC हमारा कितना हो गया? 1050. लेकिन हमसे पूछा क्या गया? वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन. नाउ वी आर हियर विद टू एग्रीगेट्स, this NNP at FC and the GNP at FC, which we calculated, in which factor cost is same, national is same. तो इसमें तो कोई difference नहीं है, but the difference is between gross and net. So what we'll do, we'll again apply the formula. Depreciation is equal to GNP at FC minus national income. We'll put the values and we'll get the value of the depreciation. Now I hope it is very much clear to you. Let's come to another problem. Calculate NFIA, net factor income from abroad. Now you know that net factor income from abroad is the difference between national and domestic. इसका होता है हम इन दोनों को कन्वर्ट नहीं कर सकते because NFIA is not given to us, but बाकी दोनों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं. So like GDP at FC is given to us, right? इसके अंदर से हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया, हमारा क्या बन जाएगा? NDP at FC, क्योंकि ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट हो गया. माइनस NIT किया, FC it is given, प्लस NIT किया तो क्या हो जाएगा? ये NDP at MP हो जाएगा. NDP at MP तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया. एंड व्हाट अदर एग्रीगेट इज गिवन टू अस? NNP at MP. तो नेट और मार्केट प्राइस, नेट और मार्केट प्राइस इज सेम. डिफरेंस इज डोमेस्टिक एंड नेशनल. सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? NFIA. तो जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो NFIA हमारा कैलकुलेट हो जाएगा. नाउ लुक एट इट वन बाय वन. GDP at FC
माइनस डेप्रिसिएशन, लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, वी सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा NDPAT-FC, और जब NIT ऐड करेंगे प्लस किया हमने इसको तो हमारा क्या बन जाएगा NDPAT-MP, राइट। नीचे आ गया NDPAT-MP, वैल्यू कितनी है 4200। नाउ टू कैलकुलेट NFI, देखो जैसे हम लोग करते हैं NPAT-FC इज इक्वल टू NDPAT-FC प्लस NFI, यही तो हमारा मेन फॉर्मूला है। तो अब अगर हम इसको इधर ले जाएं, क्योंकि हमें ये वैल्यू पता है और ये वैल्यू मालूम है, राइट, इसको अगर हम पुट करें तो ये 4500 हुआ, 4200 प्लस NFI, बिकॉज NFI हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सो 4200 इधर गया, 4500 माइनस 4200 इज इक्वल टू NFI, इट इज 300। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है NNPAT-MP माइनस NDPAT-MP। यहाँ मैंने FC लिखा है तो डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज सेम लाइक, दोनों में सेम चीज लिख दी है, राइट। तो इट इज MP, यहाँ पे आ जाएगा 4500 माइनस 4200, NFI is 300। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। Now let us start with the next problem, NIT। NIT कैसे कैलकुलेट करेंगे? We know that NIT is the difference between market price and factor cost। तो बाकी अगर हम नेशनल और डोमेस्टिक और साथ में हमारा ग्रॉस और नेट, अगर इन दोनों को सेम कर लेते हैं यूजिंग NFIA एंड डेप्रिसिएशन, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट NIT। अब नाउ टू एग्रीगेट्स आर गिवन टू अस, GNPAT-MP एंड NDPAT-FC। इट इज अप टू यू वेदर यू कन्वर्ट दिस वन और दिस वन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में अभी हम लोगों ने इसको एक्सचेंज कर रखा है, हम इसको करके देखते, आपको दूसरे तरीके से सिखाती हूँ। ये लिखा है NDPAT-FC 6200, राइट। तो हमने इसके अंदर से क्या किया, नेट से क्रॉस में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे पास GNPAT-MP हमें इसमें लेके आना है। NIT निकालना तो MP और FC में तो डिफरेंस हम कर नहीं सकते, बट नेशनल और जो ग्रॉस है उसके नाम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम पहले ग्रॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन 150। देन अब डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो व्हाट वील डू इज प्लस NFIA, प्लस NFIA, NFIA is 200, वैल्यू विल बी 5055, 6550। तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और हमारा गिवन क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, व्हाट इज इट 7000। तो वाइल कैलकुलेटिंग NIT कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग क्या करते हैं, व्हेन वी कैलकुलेट GNPAT-FC, व्हाट वी डू इज GNPAT-MP माइनस NIT, यही तो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो हमें MP से FC में कन्वर्ट करना है तो NIT को माइनस कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यूज, व्हाट इज GNPAT-FC 6550, GNPAT-MP 7000, NIT हमें पता नहीं है। तो ये 7000 जब इधर जाएगा कितना हो जाएगा, 6550 माइनस 7000, कितना हो जाएगा ये, ठीक है। अब आएगा ये माइनस में, ये चीज ध्यान में रखना है, ये NIT आपका माइनस में ही है और ये भी आपका माइनस में है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 450, ठीक है। तो यहाँ हमारा, अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं आगे। अब ये दूसरे तरीके से हमारा दे रखा है, इसको देखो, यहाँ आ गया हमारा GNPAT-MP हमारा 7000, मैंने आपको बिल्कुल इसका ऑपोजिट सिखाया, NDPAT-FC से GNPAT-MP में कन्वर्ट करके। अब आप ऐसे भी कर सकते हो और GNPAT-MP से NDPAT-FC पे आप भी सकते हो, दिस इज अप टू यू विच एग्रीगेट यू कन्वर्ट। सो एक चीज मैंने आपको बता दी कैसे हम NDPAT-FC से कन्वर्ट करके हम NIT कैलकुलेट कर लेंगे, एंड और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो GNPAT-MP से NDPAT-FC तक ओके है। सो हियर GNPAT-MP 7000 लेस डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ग्रॉस विल बी कन्वर्टेड इनटू नेट, माइनस NFIA नेशनल विल बी कन्वर्टेड इनटू डोमेस्टिक, और मार्केट प्राइस हमारा चेंज नहीं हुआ। और हमें जो गिवन है NDPAT-FC फैक्टर कॉस्ट में गिवन है, NDPAT-MP हमने निकाल लिया। तो वी हैव टू कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन MP एंड FC, 6650 माइनस 6200 450, और जब मैंने इधर कैलकुलेट किया था तो भी हमारा आंसर कितना आया था 450। ये माइनस में था, NIT भी माइनस में था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर इज 450। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ वी विल स्टार्ट विद समथिंग थ्योरेटिकल।
So dear students, let's start with something theoretical. GDP reliable measure of the economic growth. हम लोगों को जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी होती है, मैंने पहले भी बताया है, ग्रोथ की अगर बात आती है तो वी ऑलवेज टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाट इज द जीडीपी, वेदर जीडीपी इंक्रीजेस और नॉट. इफ जीडीपी इंक्रीजेस दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इफ जीडीपी डजंट इंक्रीजेस दैट मीन्स देयर इज नो इकोनॉमिक ग्रोथ. बट जीडीपी हमारे पास ऑल्दो और कोई एग्रीगेट नहीं है, बट जीडीपी इज एन इम्पॉर्टेंट नॉट अ परफेक्ट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक वेलबींग. हम लोग ये बोल तो देते हैं कि जीडीपी जो है बहुत सही है, उससे हम बता सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट मेजर हो. ये परफेक्ट मेजर नहीं है, क्योंकि जीडीपी के अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं. जो जीडीपी के ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि कई चीज़ें हैं जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं हो पाती, लेकिन सर्विस जनरेट हुई, प्रोडक्शन हुआ है, तो यहाँ पर जीडीपी हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, तो हम जीडीपी को एग्जैक्टली नहीं देख सकते. सो लेट अस स्टार्ट विद सम उसके लिमिटेशंस. लिमिटेशंस हैं 3 तरह की. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, जिसको आप डेन करके याद कर सकते हो, DEN डेन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, एक्सटर्नैलिटीज, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. लेट अस स्टडी वन बाय वन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी के अंदर क्या है, देखो जीडीपी क्या होता है, कई बार जीडीपी तो बढ़ रही होती है, हम बात करते हैं जीडीपी बढ़ रही है, बट वेलफेयर जरूरी नहीं है बढ़ रहा हो, क्योंकि हम देखते हैं अमीरों की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा राइज हो रही है, ठीक है, गरीबों को कुछ मिल नहीं पा रहा है, उनकी सिर्फ उनकी जो इनकम एक्सेस में बढ़ रही है उसकी वजह से हमारी जीडीपी राइज होगी, ठीक है. तो ये प्रॉब्लम हो सकता है. दिस इज बिकॉज ऑफ द राइज इन द जीडीपी मे बी कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल. फ्यू इंडिविजुअल मीन्स जो भी हमारे रिचर पर्सन हैं, उनकी वजह से हमें दिख रहा है हमारी जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन हो सकता है ना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो दूसरों के लिए हो सकता है हमारी इनकम कम हो रही हो, बट हमारा जीडीपी में बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो हम बोलेंगे जी कंट्री राइज हो रही है. ऐसा नहीं, गरीबी तो बढ़ रही है ना फिर उसके साथ साथ. तो इन सच अ केस वेलफेयर ऑफ द कंट्री कैन नॉट बी सैटिस्फाइड. जीडीपी इंक्रीज हो रही है बट वेलफेयर इंक्रीज नहीं हो रहा. जीडीपी इंक्रीजेस, वेलफेयर नो, ठीक है. तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सटर्नैलिटीज. क्या होता है, देखो बेटा एक्सटर्नैलिटीज क्या होता है, हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं उसके साथ प्लस या माइनस में कुछ ना कुछ हमारे बेनिफिट्स या कोई कॉस्ट रहती है, ठीक है. एक्सटर्नैलिटीज रेफर टू सोशल बेनिफिट और कॉस्ट. अब देखो इस पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी अगर कुछ बेनिफिट हो रहा है तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, कुछ गलत हो रहा है तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. लेट अस स्टडी दिस वन बाय वन. देखो जैसे सपोज हमने एक एग्जांपल दिया कि हमने एक हाईवे बनाया. हाईवे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इसकी वजह से पॉजिटिव क्या हो रहा है, देखो लोगों का टाइम बच रहा है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो रही है, जर्नी टाइम कम हो रहा है. और देखो जब हम लोग ट्रैफिक में फंसते हैं तो हमारा स्ट्रेस कितना बढ़ जाता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, और उसकी वजह से जब बंदा देर से काम पे पहुंच रहा है तो वहाँ पे वो इतने इफेक्टिवली काम भी नहीं कर पाता, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या है, इसकी हाईवे बनने की वजह से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, जर्नी टाइम कम हो जाता है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो लग जाता है हमारा, उसकी वजह से लोगों को स्ट्रेस कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा, तो सोशल बेनिफिट्स हैं. लेकिन क्या वो सोशल बेनिफिट्स में हम दिखा सकते हैं जी हमारा स्ट्रेस कम हुआ है तो हमने काम ज़्यादा किया? नहीं, हम उसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते. पॉल्यूशन कम हुआ तो काम ज़्यादा हुआ, क्या हम उसे हेल्थ हजार्ड्स कम हुए, क्या हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं. तो इसका मतलब हमने अपनी जीडीपी को अंडर एस्टिमेट किया. पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज के साथ हम देखते हैं कि हमने अपनी जीडीपी को अंडर एस्टिमेट किया. When we talk about negative externality, इसका मतलब हमने सपोज हमने कोई इंडस्ट्री बनाई है, उससे कोई पानी निकल रहा है, केमिकल्स निकल रहे हैं, तो वो हमारी पॉल्यूशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लोगों के आसपास के चिमनीज में से धुआं निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या है, सोशल कॉस्ट हार्म कर रही है कहीं ना कहीं, बट क्या उसकी वजह से हमने अपनी जीडीपी को कम किया? नहीं. तो ये हमने ओवर एस्टिमेट कर दिया. एक्चुअल वेलफेयर हमारा हुआ नहीं, हमने जीडीपी को ज़्यादा दिखा. नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, वो ट्रांजैक्शंस जो हमारी इकोनॉमी में काम तो कर रहे हैं बट हम उसे कैलकुलेट नहीं कर पाते. जैसे एक हाउसवाइफ काम कर रही है, वाटर एक्सचेंज हमारा काउंट नहीं होगा, ठीक है. कोई गार्डनिंग कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, किचन गार्डनिंग हो रही है, घर में सब्जियां उगा रहे हैं, क्या प्रोडक्शन नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, बट उसकी हम एक्टिविटी नहीं लगा सकते. एक मदर अपने बच्चे को पढ़ा रही है, क्या वो सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रही? बिल्कुल कर रही है. तो ये क्या है, क्योंकि इसका अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा नहीं है. ऑल्दो इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ता है बट हम उसे काउंट नहीं करते, तो हमने उसमें क्या किया, जीडीपी को अंडर एस्टिमेट कर दिया. सो डियर स्टूडेंट्स, our topic has been finished here. Thank you. All the best. God bless you all. Whichever your problems are, I will be solve those problems in WhatsApp group. You can ask me.